We'll be discussing few more questions from previous year JEE Mains or JEE Advanced. Okay, so this is the question from 2013 Mains. At present, a firm is manufacturing 2000 item. It is estimated that the rate of change of production P with respect to additional number of worker X is given by dP upon dx. dP, P is a production and X is additional number of workers. So rate of change is given as 100 minus 12 root X. Okay, so what we can do is we can solve this differential equation. We'll get P is equal to what? 100x x to the power of 1 by 2, so it will be 3 by 2 plus x. Here when you will put x is equal to 0, when additional number in the beginning 2000 items, so you will get C is equal to 2000. That means P will become 100x minus 8x to the power 3 by 2 plus 2000. Now what do we need? We need at x is equal to, when x is equal to additional number of implies is 25, so P will be equal to 2500 minus 25 to the power 3 by 2, so it will be 125,000 plus 2000, so 4500 minus 1000, 3500. So this is the answer. Okay, very simple question. Now this is the question from 2014 Mains. Question says that let the population of rabbits surviving at time t be governed by the differential equation this. So this is the differential equation. Write it down. dP upon dt is equal to P minus 400 upon 2. So it will be something like dP upon d, sorry, dP upon P minus 400 is equal to 1 by 2 dt. Now what will you get? ln P minus 400 is equal to T by 2 plus C. Okay, but P of 0, that means at T is equal to 0, P is equal to 100. You can put it here. So it will get you ln 100 minus what? 400, so it will be 300 is equal to C. So you can put this C here, you will get ln P minus 400 is equal to T by 2 plus ln 300. Hana? You can bring this side. So ln A minus B, it will be P minus 400 upon 300 is equal to T by 2. So E will come here, it will be P minus 400 upon 300 mod is equal to there will be two cases. P minus 400 is equal to you can consider it 300 e to the power t by 2, or when you will take negative, P minus 400 is equal to 300 minus e to the power t by 2.
all right, plus minus. So this or this, which will be correct? So from here you will get P is equal to 400 plus 300 e to the power t by 2, or P is equal to 400 minus 300 e to the power t by 2. So basically at t is equal to 0 you should be able to get how much? uh, at t is equal to 0 this will be 100, at t is equal to 0 this is the 100, so this will be the correct answer. This will be the correct answer, not this one. Okay, तो ln में एक्चुअली यहाँ पर ln 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x होता है, तो उसके आधार पे हम लोगों ने दोनों केस को देख लिया कौन सा होगा satisfying the initial condition. All right, now this is the question of 2010. उस समय यह ट्रिपल हुआ करता था नाम इस एग्जाम का. सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy. So here you can bring this side dy upon dx, and into cos x is equal to y sin x minus y square. So it will be dy by dx minus y sin x is equal to minus y square. First of all you can bring cos x this side and y square this side, so it will be 1 by y square dy by dx, and here it will be minus 1 by y tan x, and here it will be sec x. So this is what we have. You can put minus 1 by y is equal to t, so 1 by y square will be equal to 1 minus 1 by y square dy by dx is equal to dt by dx. ठीक है, if you put it here then you will be able to replace and reduce it in the form of linear differential equation. This will be dt upon dx sorry, and this will be plus tan x into t is equal to minus sin x. So as you can see this is linear differential equation, and if it is linear differential equation we can solve it. Integrating factor will be e to the power tan x dx, so it will be e to the power ln sec x is equal to sec x. All right, since x is given 0 to pi by 2, so mod x लगाने की mod sec x लगाने की जरूरत नहीं, वो पॉजिटिव ही होगा तो इतना आ जाएगा. ठीक है, चाहे तो आप यहाँ लगा सकते हैं, तो ये इतना ही आएगा. तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा t इंटू जनरल सॉल्यूशन t इंटू sec x इज इक्वल टू माइनस sec x इंटू sec x dx. t को लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन वाई sec x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x plus c. So you will get what? C minus tan x into y and plus sec x is equal to 0. This is the solution of this differential equation. Okay, let's see the next question. JEE Advanced 2013. A curve passes through the point 1 comma pi by 6. Let the slope of the curve at each point x comma y be y upon x plus sec y upon x.
स्लोप इज गिवन बाई dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस सेक y अपॉन x। ऑल राइट, तो आप सीधे यहाँ पर रख सकते हैं, होमोजीनियस है y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रख दीजिए यहाँ पे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस सेक b, ये और ये कट गया, तो ये हो जाएगा cos v dv इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। cos v का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin v, ये हो जाएगा ln mod x, चूँकि x ग्रेटर देन 0 है तो इसको आप ln x ही लिख सकते हैं, sin y by x is equal to ln x plus c. So this is the equation. It is passing through the point 1 comma pi by 6. So x is equal to 1, it will be 0, and y is equal to pi by 6, so it will be 1 by 2. You will get c is equal to 1 by 2. Therefore equation of curve is क्या, sin y by x ln x plus 1 by 2. ठीक है, so we have the next question from JEE Advanced 2014. The question is y is equal to f of x is the solution of differential equation this. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर जो आप ध्यान दें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर एक्स का पावर 4 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका p ऑफ x q ऑफ, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत ही आसान है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, अगर जो 1 बाई 2 दे देते तो कैसे होता है इंटीग्रेशन आपको आता है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि x दिया हुआ है -1 से 1 में, तो ये माइनस निगेटिव नंबर है तो बाहर आएगा माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा, ये 1 बाई 2 इस पे आ जाएगा, तो e टू द पावर ln रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ln है, e बेस ई खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप्स लिखना पड़ रहा है, वरना आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ें कैलकुलेट माइंड में कीजिए तो उससे आसानी होगी, है ना। चलिए, अब आपको निकालना है क्या, फंक्शन, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू सोल्यूशन जो हो जाएगा आपका y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 2x dx, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x का पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, और f ऑफ 0 0 दिया हुआ है, f ऑफ 0 0 है, तो x बराबर 0 रखने में y 0 रखेंगे तो c भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया क्या, फंक्शन, देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 अपॉन 5 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमको चाहिए इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल चाहिए माइनस √3/2 से √3/2 एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5, यही हमारा fx है, और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, ये जो है ना आपका ऑड फंक्शन, x पावर 5 है और ये इवन है, तो ऑड इवन ऑड हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस a से a में 0 हो जाएगा, तो ये आपको निकल के आ जाएगा कितना, माइनस √3/2 से √3/2, सिर्फ ये बच जाएगा,
ठीक है। और ये इवन फंक्शन है तो ये दुगना हो जाएगा 0 से √3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से या डायरेक्ट फार्मूला लगा के मैनिपुलेशन करके, लेकिन ऐसा करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर x बराबर साइन थीटा रखते हैं तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है इसको i मान लिया जाए तो i बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 से √3/2 एक्स स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। 0 से सॉरी ये हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा π/3, 0 से π/3 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा अब माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, 0 से π/3 ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस साइन 2 π/3 हो जाएगा √3/2, तो दिस विल बी √3/4 और ये 0 ही हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। इट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2014 JEE Advanced. Okay. Let's see the next question from JEE Advanced 2018. Let f such that R2R be a differentiable function. ये 2018 का सवाल है। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब आसान सवाल हैं। ये मेंस में अगर जो आ जाता है, क्योंकि 25 सवाल कर दिए हैं ना, तो उसमें इंटीजर टाइप का सवाल भी है। इंटीजर टाइप में एक तो अगर जो क्वेश्चन घटाया है तो लेवल तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही, तो उसमें एक दो सवाल अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये ना ज़्यादा लेंदी है और ना ज़्यादा ये है टफ है, तो सवाल पूछने के संभावना बढ़ जाते हैं इसको। लेट f such that R2R be a differentiable function with f of 0 बराबर 1, ये इनिशियल कंडीशन है। एंड सेटिस्फाइंग दिस, तो इसमें अगर जो f of 0 1 दिया है, x बराबर 0 रख दीजिए और y भी 0, तो ये हो जाएगा f of 0 बराबर f of 0 इंटू f डैश 0 प्लस f डैश 0 इंटू f of 0। तो यहाँ से आ जाएगा f of 0 तो 1 है, तो f डैश 0 हो जाएगा हाफ। ठीक है, f of 0 कितना दिया हुआ है 1, ठीक ना। अब अगर जो हम लोग ऐसे सवाल में क्या लगाते थे, आपको याद होगा f डैश x इज इक्वल टू, ये डिफिनेशन जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इसमें x प्लस वाई वाला जो फार्मूला है ये लगा दीजिए, तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू f डैश h प्लस f डैश x इंटू f ऑफ h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। h बराबर 0 रखने पे ये f डैश 0 हो जाएगा। नीचे में 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस में f ऑफ x इंटू f डैश 0 और f डैश 0 कितना लाए हम लोग, हाफ, और प्लस f डैश x इंटू एफ ऑफ 0 और ये कितना है 1 और माइनस एफ डैश एक्स। ये 0 होना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो उस केस में यहाँ से ये हो जाएगा हाफ और ये आपका हो गया 1, तो कितना आ गया एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यानी यहाँ से आ जाएगा बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हाफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका y है, ये dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy बाई y अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा ln y इज इक्वल टू कितना x/2 प्लस c। अब है कि चूंकि f ऑफ 0 1 दिया हुआ है, तो x बराबर 0 रखने में y 1 आएगा, तो c 0 हो जाएगा। तो अगर c 0 हो गया तो y बराबर कितना आ जाएगा e टू द पावर x/2। थोड़ा सा जगह कम रहने के कारण थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, लेकिन ठीक है। ये आपका आ गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर x/2, y मतलब f(x) इज इक्वल टू ई टू द पावर x/2। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ।
अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ln ऑफ f ऑफ 4। तो ln ऑफ f ऑफ x की बात करें, ln ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x है e टू द पावर x बाई 2, e टू द पावर x बाई 2, x बाई 2 इधर चला जाएगा बेटा तो ln e हो जाएगा, ln e 1 हो जाएगा तो x बाई 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर जो x बराबर 4 रख दीजिए ln ऑफ f ऑफ 4 तो क्या हो जाएगा 4/2 विच इज़ 2। सो दिस इज़ दी आंसर, इसका वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, ऑल राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल था, जगह कम रहने के कारण यहाँ पर मैंने ऐसे किया, आप इसको ढंग से फिर से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, आप डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। So we have the next question from 2017 JEE Advanced, y is equal to y of x, satisfy the differential equation। ये तो बहुत ही आसान है, x अलग अलग कर लीजिए। तो dy is equal to रूट 4 प्लस 9 प्लस रूट x to the whole power -1 divided by 8 रूट x 9 प्लस रूट x। वेरिएबल सेपरेबल होगा, बहुत ही आसान लग रहा है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अगर जो कुछ मान लिया जाए 4 प्लस 9 रूट एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए, चलो ऐसा करते हैं टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पुट इतना इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इसको 1 दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 2 रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स एंड 2, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स एंड दिस विल बी 2t dt। ठीक है, तो पालक मुझे जहाँ तक लग रहा है ये आपका dy का हो जाएगा y, यहाँ से अगर जो इसको लाओगे तो y हो जाएगा, और ये आपका t स्क्वायर का रूट हो जाएगा t, इसका t स्क्वायर का रूट हो जाएगा t, तो t का पावर -1 डिवाइडेड बाई इसको इधर अगर जो लेकर चला जाए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये जो है इतना बराबर t dt लिखा जा सकता है। देखिए गौर से, 8 रूट एक्स, इसको 2 को इधर भेजें, 2 दूना 4 दूना 8 रूट एक्स दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू टी डी टी। ठीक है, तो हो गया, और क्या, तो t लीजिए, तो ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, तो क्या बच जाएगा आपका, ये और ये कैंसिल हो गया, तो सीधे इसका आंसर t हो जाएगा, इसका आंसर t हो जाएगा, t प्लस सी। ठीक है, t प्लस सी, y इज इक्वल टू आ जाएगा y इज इक्वल टू टी प्लस सी, और t किसको माना था, तो टी स्क्वायर ये था, तो t हो जाएगा आपका रूट अंडर 4 प्लस 9 रूट अंडर x प्लस सी। गिवन है आपका कितना, y ऑफ 0 कितना गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू रूट 7, तो x बराबर 0 रखिए, यहाँ पे रूट 7 आना चाहिए, तो इसको रख दीजिए रूट 7, और ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 9 रूट्स, यानी यहाँ से आ गया c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया बालक 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट एक्स, ये आपका आ गया। बहुत ही आसान था, मतलब देखने में इतना डरा बना दिया है, लेकिन आप देखो कि सिर्फ इसको माने हैं उसे एक बार में आ गया, यही है ना। चलिए अब हमको चाहिए y ऑफ 256, तो यानी y ऑफ 256 का मतलब हुआ x के जगह पर x बराबर 256 रखना है, y का वैल्यू x बराबर 256 रख दीजिए, तो हो जाएगा 4 प्लस 9 और प्लस 256 का हो जाएगा 16, 16 9 25 का हो जाएगा 5, 5 4 9 3, दिस इज द आंसर। सो कभी कभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा लगेगा, एडजस्टमेंट करने में उसको विजुलाइज करने में क्या लगाना है वही वक्त लगेगा, उसके बाद आप तुरंत बना लीजिएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी स्कोरिंग टॉपिक होता है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल और कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो कोई भी और परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी और अपने आप का प्रिपरेशन जो है इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच।